Hello. Hello. Am I audible? Yes, ma'am. So, how are you? How are you? All well? Ma'am, yes, ma'am. Ma'am, how are you, ma'am? I'm great. Isn't it different to say something like I'm great in place of I'm fine? Isn't it? It is quite different. Okay. So, how did you find the exercise? How many of you have done this? कितने बच्चों ने अटेम्प्ट किया उस एक्सरसाइज को? Hello? Did anyone do that? Abhinav, Anurag, Divya, Harsh, did you do that? No, ma'am, not yet. Not a single one. Wow. It means you're all perfect in this subject. No problem is there, no issue is there, so I am relaxed. In examination, you will score 100 out of 100. हाँ मैम हो गई थी वो तो हुई थी, उसी के लिए तो पूछे. नहीं मैम मैंने लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी ना तो इसलिए मेरे को पता नहीं है. Recording stopped. Recording in progress. Aditya, God and Mudit. Okay. Let them enter. Tell me your corrections one by one. Aditya, what about the first sentence, Peter? Aditya, first sentence. मैम मैं अभी आया हूँ. क्वेश्चन क्या है? No. मैं आपकी वॉइस क्रैक कर रही है. आप कुछ बोल रहे हो? Yes, beta. I am asking Aditya Rawat to answer the first sentence. अच्छा सॉरी मैं कुमार हूँ. First sentence. What was the correction there? And but I don't think. Yeah, I think his mic is on. Yes, Aditya, can you answer this? His mic is on. Also there from his side. So Aditya Kumar, rule number 1. Can you give us a correction in the first sentence? मैम आप रोल नंबर 1 से पूछ रहे हो? Yes, beta. मैम सेंटेंस क्या है मेरे को नहीं पता. यहाँ पे कुछ स्क्रीन पे शेयर भी नहीं हो रहा. गूगल क्लासरूम पे आपने अटेम्प्ट नहीं किया? गूगल क्लास है? गूगल क्लास
नहीं मैम मैंने अभी देखा नहीं है, मैं एक सेकंड देखता हूँ। ओके, बाकी लोग भी एक बार ओपन कर लीजिए उसको, जिन लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किए हैं। मैम आप यही कह रहे हो ना, वन शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट हिज सुपीरियर्स। यस यस बेटा, जल्दी से। One should always respect their superior. वन शुड ऑलवेज सुपीरियर्स। नो, कल ही मैंने आपको इस तरीके के सेंटेंसेस का एक एग्जांपल दिया भी था। One should always Riddhi? respect his elders. यस चैतन्य, गो अहेड चैतन्य। Ma'am, one should always respect his elders. You are not audible, Chaitanya. Dhriti, Hello, can you ma'am. answer this? Ma'am, am I audible? Yes, please. Yes, now you are audible. One should always respect his elders. No, बेटा, ये तो सेंटेंस उसमें है ही। ये Their सुपीरियर से superior. एल्डर से एक ही बात है। No, we already discussed it One's elder. yesterday, last class. Once. One should always respect one's ONE''S. One should always respect one's superiors. Correct it. Note down the correction. जल्दी से इसको करेक्ट भी कर लीजिए, इसको नोट करके भी रखिए। When one is the subject, relative verb or relative pronoun or reflective pronoun, emphatic pronoun should be one's, not his or her. So one should always respect one's superiors. Next sentence. Next sentence. मैम आंसर एनी टू क्वेश्चंस। Answer any one of the two questions. Yes, answer any of the two questions, because already in the question there is already two. तो उनमें से किसी एक को आंसर करना है। In that case, answer any of the two questions. अगर टू से ज्यादा होते हैं उस केस में एनी वन और एनी टू और एनी थ्री अकॉर्डिंगली. फॉर एग्जाम्पल, इफ 10 क्वेश्चंस आर देयर एंड यू आर सपोज टू आंसर ओनली 4, so answer any 4 of the 10 questions. But as choices between 2 only, answer any of the questions. Good. Next one. मैम ये who do you think he is? Who do you think he is? Who do you think he is, or who do you think is he? Who do you is he? Good. Next. बहुत सिंपल एक्सरसाइज है ये तो। मैम फिर Yes, Dhriti. You know him better. You know him better than me. You know him Then better me. than I. You then Only you know, then it should be only you know him better. no. अगर आप साइज करने हैं that मेरे से ज्यादा आप उसको जानते हैं, yes, what were you saying? You know him You better know than him I. better. No, you know him better than I. You know him better than I. मैम यहाँ पे मी क्यों नहीं लगा सकते? Me is objective case, not subjective. Me is an object. Let me explain it. मैम Screen इसका share कर मतलब तो देती ये हूँ। होगा कि जितना मैं उसे जानता हूँ उससे ज्यादा तुम जानते हो आई लगाने से।
Yes. Is it visible to you? Screen visible है आप लोगों को? नहीं मैम. अभी नहीं है. Okay. Let me check. Okay. Me is objective case. Me is used as object. For example, give it to me. और जितना तुम उसे जानते हो उससे मतलब जितना मैं जानता हूँ उससे ज्यादा तुम जानते हो. इट मीन्स बोथ आर सब्जेक्ट्स. यू इज अ सब्जेक्ट एंड ऑल्सो अ सब्जेक्ट. ठीक है. अब सब्जेक्ट्स कंपैरिजन करें दैट इज इट शुड बी यूज्ड इन सब्जेक्टिव केस ओनली. यू नो हिम बेटर देन आई. आप ये कहते हैं कि यू नो हिम बेटर देन यू नो मी. मैम आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. देखिए नेट का इशू हो सकता है. हालांकि ये नेट बिल्कुल पूरा शो कर रहा है. ठीक है. नहीं है. फिर भी हो सकता है लाइन में कोई प्रॉब्लम हो. मैम फिर तो यू नो हिम बेटर देन आई डू आना चाहिए. वो अंडरस्टूड होता है बेटा. देन आई नो और आई डू. आई के बाद जितनी भी जो वर्ब है हेल्पिंग वर्ब है दैट इज ऑलवेज अंडरस्टूड. दैट इज हिडन. उसको आप यूज नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल यू स्विम बेटर देन आई. अब उसको आप कैसे कंपैरिजन कहां पर है? यू स्विम बेटर देन आई स्विम और आई डू. ठीक है. लेकिन हम आई स्विम और आई डू यूज नहीं करते. यू स्विम बेटर देन आई. दैट इज ऑलवेज अंडरस्टूड बिकॉज द वर्ब इज रिपीटेड. उसको रिपीट करने की बजाय हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं. दैट इज अंडरस्टूड. द सेम केस इज देयर. Next sentence, please let Meera and I play for a while. What is the answer? Please let Meera and I play for a while. Yes, Astha? Yes, ma'am. What is the correction? Harshit Gupta? मैम मैंने लिखा प्लीज लेट मी एंड मीरा प्ले फॉर अ व्हाइल. बट वही फिर आपने भी आई करा दे तो. Please, नहीं वो ठीक है आपका बिल्कुल. Please let Meera and me play for a while. You are right. अब मैम यहाँ पे मी क्यों आएगा? पर अब मी तो लग रहा है होगा यहाँ पे आई क्योंकि आएगा. हाँ तो वहाँ सब्जेक्टिव केस में आपको यूज करना है. वहां पर वो सब्जेक्ट है. बट इन दिस सेंस इट इज ऑब्जेक्ट. ठीक है. यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट है बेटा तो इसलिए मी आएगा. प्लीज लेट मीरा एंड मी प्ले फॉर अ वाइल. बिकॉज परमिशन देने वाला सब्जेक्ट कौन है? सेकंड पर्सन यू, जिससे आप कह रहे हैं, जिसको आप बात कर रहे हैं. प्लीज लेट मी प्ले. प्लीज लेट मीरा एंड मी अ वाइल. प्लीज लेट मी डू माई वर्क. यू आर आस्किंग टू द सेकेंड पर्सन. आप सेकेंड पर्सन को ये कहने दो, मुझे मेरा काम करने दो. पर्सन कौन है? द सब्जेक्ट एंड इज द सेकेंड. जो भी पर्सन जिससे भी आप बात कर रहे हो. ठीक है. ऑब्जेक्टिव केस है. दैट्स व्हाई मी इज करेक्ट. नेक्स्ट इज बीइंग अ रेनी डे आई टुक माई अम्ब्रेला.
थोड़ा अगर आप लोग जल्दी करोगे तो हम बहुत सारा कर सकते हैं इस एक लेक्चर में, क्योंकि अभी बहुत सिलेबस पड़ा हुआ है बेटा, और कभी भी आपके सेशंस का आपको पता ही है, 6 वीक्स के बाद 7 वीक्स के बाद आपके। यस बेटा। अरे मैम मैम वो इनविटेशन को ना जो क्लिक कर रहे हैं उसमें लिख रहा है अपने एक बार लिंक दोबारा से भेज दो प्लीज। किसको? मैम मैम वो क्लासरूम का ग्रुप लिंक में भेज दो। क्लासरूम का लिंक ना इनवैलिड बता रहा है, इनविटेशन नॉट फाउंड। अब एक बार दोबारा भेज दो, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहा। गूगल क्लासरूम का? Yes, यस ma'am. मैम। यस मैम यस यस वो गूगल क्लासरूम का लिंक तो मुझे भी ढूंढना पड़ेगा, इट विल टेक टाइम। कोई बात नहीं, हम क्लास के बाद सेंड कर देना आप कभी भी। चेक इट, भी मिल जाता है तो। तब तक आप लोग जल्दी से सेंटेंस देख के बताइए बाकी लोग। ठीक है, मैं आपको इसको लिंक में बाद में सर्च करके भेज दूंगी, मैंने किस उसमें डाला था। यस। बीइंग अ रेनी डे आई टुक माय अम्ब्रेला। I took my umbrella because it was a rainy day. आपने ट्रांसफॉर्म कर दिया बेटा सेंटेंस को। Ma'am, it being a rainy day, I took my umbrella. दिव्या। Yes, ma'am. वेरी गुड। इट बीइंग अ रेनी डे, it being a rainy day I took my umbrella because अगर आप being से पहले कोई सब्जेक्ट आप नहीं लगाते, ये पूरा फ्रेज ऑटोमेटिकली इस सब्जेक्ट के लिए चला जाता है। ठीक है, इफ देर इज नो सब्जेक्ट, पूरा का पूरा ये क्लॉज का पोर्शन, जो भी एडजेक्टिव, जो भी एडवर्ब या जो ये पूरा क्लॉज इसको रेफर कर देता है। अब आई एम नॉट अ रेनी डे, रेनी डे टू इट इज अ डे, so it being a rain, my umbrella. Another example, being very cold I could go out. अब मैं ठंडा था इसलिए बाहर नहीं जा पाया, ठंडा था। It being very cold or the weather being very cold, I could not go out. Being very high, I could not climb the tree. अब क्या बहुत ऊंचा था, I or the tree? The tree. So it being very high, I could not climb the tree, or the tree being very high, I could not climb it. So remember, अब जब भी इस तरीके का कोई सेंटेंस आपके पास है, हम कहते हैं नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, तो इससे पहले आपको कोई सब्जेक्ट लगना है। ठीक है, you are not able to insert any subject, any noun before it, you can this pronoun it. It being very hot, cold. Good. Good, Divya. Next sentence. Next sentence. Ma'am, next में he is the most honest of all. He is the most honest Of all. Dan की जगह of. ठीक है, ऑफ ऑल भी आप कर सकते हैं और अमंग ऑल भी कर सकते हैं। ठीक है,
Next one. Out of these two books, ये मैं आपको इसलिए रूल्स के साथ साथ मेरे पास दो ही तरीके थे बेटा, या तो मैं आपको पहले सारे रूल्स लिखवा दूं, उसके साथ एक एग्जांपल करा दूं, आप उसको सुनेंगे या नोट करेंगे, छोड़ देंगे. Here you can do it yourself and you can learn better. ये तो बहुत एक पुरानी proverb है, if you do it, you learn it, you remember it forever. Yes. Out of these two books, this is the best. Is better. This is Better. better. Good. Because comparison is between two only. तब आप उसमें comparative degree use करेंगे. Out of these two books, this is better. लेकिन अगर 3 या ज्यादा बुक्स का आप कंपैरिजन करते हैं, उसमें आप the best. Very good. She is wiser than strong. Already हम इसको कर चुके हैं सेंटेंस को. Already we have done this. More And I wiser had- than strong. She is more wise than strong. Good. Next is, he is stronger than any man. He is stronger than any man. मैम यहाँ पे सिंपल ही इज द स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं आ जाएगा? No. वहां पे आपने फिर वही किया ट्रांसफॉर्मेशन. मैंने अभी पहले आपको भी बताया था कि ट्रांसफॉर्मेशन से बेटर है कि आप उसको करेक्ट करो. Ma'am, he is stronger than one man. Anyone else? He is strongest of all men. He is the strongest of. All men. चलिए इसको देख लेते हैं करके. If you say, रेजर ही नहीं जा रहा है. If you say he is stronger than any man, यानी man से ज्यादा वो स्ट्रॉन्ग है. Self is not a man. Stronger than any other. He is stronger than any other. Is it clear to you? मैम रिपीट करना एक बार. He is stronger than any other man. बाकी और से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. Then any man, it means he is not a man. Next sentence, this earth pot is king. This earthen pot is leaking. Very good. Next. Next sentence. Lion is the king of beast. Lion. The lion is the king of beasts. Both friends are at fault. थोड़ा जल्दी. Both of the friends are at fault. Both are at fault. Very good. Next.
Next. Ma'am, next, boys of this school are very naughty. Recording stopped. The boys of this school are very naughty. The boys, क्योंकि हमें कॉमन नाउन यूज कर रहे हैं, सो द बॉयज होल कम्युनिटी यूज स्कूल की है और उसको हमने स्पेसिफाई भी किया ऑफ दिस स्कूल. सो द बॉयज ऑफ दिस स्कूल. एनी वन ऑफ यू प्लीज टेक दिस स्क्रीनशॉट. अभी लेकिन फिर एक बच्चा और फिर चला गया है. Maybe the net problem is there. Kabir Mittal, he is entering the class. After he enters the class, you can take this screenshot and send it to me. एक और पहले आए थे because 43 were there. क्योंकि फिर बाद में अटेंडेंस चली जाती है. Recording in progress. Okay. Next sentence. Has the principal and the manager come? Have the principal entered and the manager come? Repeat. Have the principal and the manager come? Why? Why have? क्योंकि मैम दो यहाँ पे लोग जो हैं ना, हम वो कर रहे हैं, Singular. जिससे पूछ रहे हैं उससे हम दो लोगों के बारे में पूछ रहे हैं ना. क्वेरी जो हम Exactly. कर रहे हैं सामने वाले से, लेकिन वो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? ये तो हो सकता है कि प्रिंसिपल और मैनेजर एक ही हो. ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों? हम ये कहते हैं द मैनेजर एंड द पोएट. वी आर टॉकिंग अबाउट टू. लेकिन क्या जरूरी है कि जो मैनेजर है किसी जगह का वो मैम नहीं, रोल्स तो फिर भी अलग दोनों अलग है ना. एक भी हो सकते हैं. हो सकता है बेटा, पोस्ट अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक ही पर्सन हो सकता है कि वो दोनों ही चीजों को. बट मैम हम रेफर तो एक ही को करेंगे ना. नहीं, आप दोनों के बारे में अगर पूछ रहे हैं तो आप दोनों को अलग अलग रेफर कर रहे हैं, लेकिन अगर आप एक के बारे में पूछते हैं तो एक जगह रेफर. माय पॉइंट इज, एक्सक्यूज मी मैम, द सेंटेंस. यस मैम जैसे हाँ जारी है, बोलो. यूके की क्वीन है, जो ऑस्ट्रेलिया में भी क्वीन है और कनाडा की भी क्वीन है, तो हम तो सब बस यूके की क्वीन ही बोलते हैं ना. तो ऐसे थोड़ी ना पूछते हैं क्वीन ऑफ यूके, क्वीन ऑफ कनाडा एंड क्वीन ऑफ ऑस्ट्रेलिया का एक ही पूछते हैं ना कि क्वीन आ गई. नहीं, एक अलग चीज है, लेकिन आप दोनों को अलग अलग करके भी पूछ सकते हो. और मैम जो दिल्ली का एलजी है, लेकिन वहाँ पे आपको पता है वो डीटीयू का वीपी भी है, वाइस प्रिंसिपल, वो चांसलर भी है, तो हम उसको तो डीटीयू का एलजी ही तो बोलते हैं, मतलब दिल्ली का एलजी तो बोलता है ना. ये किसने का वो डीटीयू के वीसी है? डीटीयू के वीसी तो योगेश सिंह है. मतलब थे एक टाइम पे, अब मुझे ये नहीं पता. ये वो दोनों ने एक पोस्ट दोनों टाइम पे संभाली है. हाँ बेटा, वही मैं आपको कह रही हूँ कि इन केस वन पर्सन होल्ड्स टू पोजीशंस, तो मैं वही तो उस केस में आप एक ही के बारे में बात करोगे. लेकिन हाँ, लेकिन आप अगर दोनों पोस्ट उनकी लगा के बात करते हो तो ओके है, वो प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन आपको ये देखना है कि आप कैसे करना है, दैट यू आर टॉकिंग अबाउट वन और टू और शुड बी यूज्ड. ये जो क्लास छोड़ के जल्दी अटेंडेंस में स्क्रीनशॉट के बाद भी तभी मैं अपने पास लगा देती हूँ अटेंडेंस. यहाँ पे आपको जो मेरा पॉइंट है एक्सप्लेन करने का, वो है when we are talking about two different people or two different things, we have to use article the with both of them. जो इस केस में है, has the principal and the manager. तो प्रिंसिपल और मैनेजर दोनों के साथ द लगा हुआ है. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल, टू डिफरेंट पर्सन. लेकिन अगर किसी एक के साथ आपको
किसी एक के साथ लगा हुआ है और आपको एक ही पर्सन है जिसके बारे में बात, दोनों एक ही हैं, उस केस में आप सिंगुलर वर्ब यूज, द प्रिंसिपल एंड मैनेजर कम, हैज द प्रिंसिपल एंड मैनेजर कम। सेकंड नाउन से पहले आर्टिकल द यूज नहीं होगा, बट व्हेन आर्टिकल द इज देयर विद बोथ द नाउन्स it means two people are there and verb should be plural. लेकिन अगर ये दोनों चीजें अलग अलग हैं but they are used together, they refer to one, और जब आप दोनों को कंबाइन कर देते हैं तभी वो यूज हो सकता है या तभी वो मीनिंगफुल है, उस केस में भी आप सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ब्रेड एंड बटर इज अ होलसम फूड। इसको भी रहने दीजिए, इसको हम जब एक टॉपिक है हमारा एग्रीमेंट ऑफ द वर्ब विद द सब्जेक्ट उसमें कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको ध्यान रखिए, इफ टू नाउन्स आर देयर विद आर्टिकल द विद बोथ ऑफ देम, इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट टू एंड वर्ब शुड बी प्लूरल। ओके, गो अहेड विद द नेक्स्ट सेंटेंस। हियर इज संस्कृत एंड इंग्लिश डिक्शनरी। Here is a Sanskrit and an English dictionary. No. Here is a Sanskrit and English dictionary. आप एक डिक्शनरी के बारे में बात कर रहे हैं, वो संस्कृत और इंग्लिश, यानी संस्कृत से इंग्लिश में और इंग्लिश से संस्कृत में आप उसमें वर्ड ढूंढ सकते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश होती है, ऐसे संस्कृत और इंग्लिश डिक्शनरी है। सो हियर इज ए संस्कृत एंड इंग्लिश डिक्शनरी। अगर आप ए और एन दोनों में लगाएंगे उस केस में हियर आर ए संस्कृत एंड एन इंग्लिश डिक्शनरी, यानी एक संस्कृत की और एक इंग्लिश की, इट मीन्स टू डिक्शनरीज आर देयर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ए संस्कृत, लेकिन संस्कृत की डिक्शनरी जिसमें आपको संस्कृत से हिंदी में वर्ड्स मिल जाएंगे और इंग्लिश में, इंग्लिश से हिंदी में मिल सकते हैं। लेकिन क्योंकि उसमें ट्रांसलेशन किसी एक लैंग्वेज का दूसरी में होता ही है, तो आप उसको हिंदी इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश टू इंग्लिश डिक्शनरी, इंग्लिश हिंदी डिक्शनरी, आप इस तरीके से यूज करते हैं। दैट्स व्हाई इट इज हियर इज अ संस्कृत एंड इंग्लिश डिक्शनरी। नेक्स्ट सेंटेंस। Next sentence. कौन सा है मैम नेक्स्ट सेंटेंस? Think she seems to be in the debt. She seems to be in. What is the correction? Please be fast. मैम ठीक लग रहा है तो she seems to be in debt. No बेटा, इसमें आर्टिकल द नहीं आएगा। She seems to be in debt. She seems to be in debt. The is inappropriate here. Next sentence. This is the only one of his poems that is interesting to read. Among all his Akanksha? poems, this is the only poem which is interesting to read. Again, you have changed the forms. पूरा स्ट्रक्चर आपने चेंज कर दिया है। Yes, can you answer this? धूपम, कभी कभी ऐसा लगता है ये लोग क्लास ज्वाइन करके और उसके बाद जाके कुछ और काम करना शुरू कर देते हैं।
और इसमें लॉस मेरा नहीं है। When you are मैम giving your time, बता तो please दो। learn a lot. हाँ बता रही हूँ। This is the only one of it that are interesting to read. Because in this sentence, that is referring to poems. के लिए यूज हुआ है poems के लिए कि ये उसकी में से एक है जो पढ़ने में इंटरेस्टिंग में अच्छी हैं। तो मैम अगर एक उनमें poem से की एक है। बात हो रही है तो इस आना चाहिए ना, आर क्यों लगा रहे हैं हम लोग? बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट ये जो दैट है, दैट के लिए हम अब यूज कर रहे हैं बेटा। पोएम के लिए तो हमने पहले ही लगा दिया, दिस इज जो सिंगुलर पोएम जिसके लिए हम बात कर रहे हैं उसके लिए तो हमने ऑलरेडी इज लगा दिया है, दिस इज द ओनली वन ऑफ हिज पोएम्स। कौन सी पोएम्स? दैट आर इंटरेस्टिंग टू रीड, जो पढ़ने में अच्छी हैं, उनमें से ये एक है। तो एक के लिए तो हम ऑलरेडी इज यूज कर चुके हैं, यहाँ पर हमें दैट के अकॉर्डिंग यूज करना है, एज दैट इज रेफरिंग टू पोएम्स प्लूरल, दैट्स व्हाई इट शुड बी आर। Next is the minister with his followers are coming. The minister with his followers is coming. Is coming. ठीक है, good. Is मैम coming. the minister and his followers are coming, ऐसा कर सकते हैं? हाँ, अगर आप हाँ पे उसको चेंज कर सकते हो, आपने इसमें ट्रांसफॉर्म कर दिया। आपने क्या किया यहाँ पर, जो द मिनिस्टर विद हिज फॉलोअर्स, दिस इज अ सिंपल सेंटेंस, लेकिन अगर आप एंड लगा देते हैं, एंड में अलग अलग दो क्लॉज बन जाते हैं, द मिनिस्टर एंड हिज फॉलोअर्स आर कमिंग, तभी आर के साथ ठीक है। लेकिन अगर आप विद यूज करते हैं, द मिनिस्टर विद हिज फॉलोअर्स, तब एक ही सिंपल सेंटेंस है। तो आपने क्या किया, आपने इस सेंटेंस के फॉर्म चेंज कर दिया, आपने सिंपल से उसको एक कंपाउंड सेंटेंस बना दिया, द मिनिस्टर एंड हिज फॉलोअर्स। लेकिन सिंपल सेंटेंस अगर आप इसको विद के साथ यूज करते हैं, उस केस में इट शुड टेक इज, द मिनिस्टर विद हिज फॉलोअर्स इज कमिंग। ओके, Recording in progress. okay. How many sentences are there? कितने अभी? मैम आगे कंटिन्यू करें? नहीं, अभी अब यही वाली एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद जो बच्चे हैं उनको नेक्स्ट क्लास में करेंगे। विजिबल है आपकी स्क्रीन?
यस मैम विजिबल है. वेरी गुड. फर्स्ट सेंटेंस सबको समझ में आ गया होगा. Respect himself in the army. क्या होगा करेक्शन? Oneself. Oneself. Good. Next is जल्दी से, क्योंकि इसके बाद एक भी हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने वो खेला हुआ भी हो पहले. Return it back to me. No. क्या होगा सेंटेंस? Ma'am, return it to me Return because return and back are similar words. So Exactly. It is called redundancy. या इसको आप इंडियनिज्म भी कह सकते हैं, क्योंकि हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी इसी तरीके से हिंदी में यूज करते हैं. इसको मुझे वापस दे देना. ठीक है. सो रिटर्न इट बैक टू मी. रिटर्न मीन्स गिविंग बैक. दैट्स व्हाई देयर इज नो यूज ऑफ बैक इन दिस सेंटेंस. रिटर्न इट टू मी. रिडंडेंसी वेयर वी यूज मोर देन रिक्वायर्ड वर्ड्स. अननेसेसरी वर्ड्स हम जहां पर यूज कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रिडंडेंसी. तो यहाँ पर ये रिडंडेंसी भी है. रिटर्न इट टू मी. गुड. Next is Rajesh is stronger than tall. सिंपल है, भी आप लोग कर चुके हैं. राजेश इज मोर स्ट्रॉन्ग देन टॉल. नेक्स्ट सेंटेंस, इसको क्लियर करिए. Delhi could not emerge as the commercial capital of India because it did not have a seaport. Yes. Delhi could not emerge as the commercial capital of India because it did not have a seaport. मैम ठीक ही लग रहा है. No. Delhi could not emerge as the commercial. ये past tense में है. क्यों नहीं commercial capital बन पाया? Because it does not have a seaport. क्योंकि अभी भी नहीं है. When we refer to something that is not available at present, और जो सिचुएशन अभी भी वैसी है जैसी पास्ट में थी, it is unchangeable. उस केस में आप प्रेजेंट टेंस ही यूज करेंगे, क्योंकि अगर आप इसको देखते तो इसका मतलब है उस वक्त नहीं था, अब है. So because it does not have a seaport, इसको आप प्रेजेंट टेंस में ही यूज करेंगे. It should be in past tense. Could not, ये ठीक है, but here you have to use does not. ठीक है. यस मैम. Yes, you, he and I are guilty. You, he and I are guilty. We three are कर दे मैम. We three are guilty. No. मैम मेरी फर्स्ट क्लास है तो इसलिए मेरे को पता नहीं है कुछ ज़्यादा. I, you and he are guilty. क्यों होगा? ये होते हैं sequence of pronouns. It is related to this. Remember, when first, second and third person are there in the sentence and you are talking about all three, in that case, you have to take care of the sequence of pronouns. If something positive is there or you are supposed to give some credit, something affirmative is there, in that case, you have to use this sequence. You, he and I. लेकिन अगर I की जगह प्लूरल है, उस केस you, we,
और ही भी हो सकता है, लेकिन अगर आई है उस केस में ही एंड आई। यहाँ पर आई, यू एंड ही क्यों है? बिकॉज यहाँ पर आप एक ऑफेंस एडमिट कर रहे हैं, नेगेटिव इज देयर, यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस केस में आप फर्स्ट पर्सन सबसे पहले मेंशन करते हैं, फिर सेकंड पर्सन को और थर्ड पर्सन में, क्योंकि वो तो वहां पे प्रेजेंट ही नहीं है, तो सबसे पहले बना देंगे जो प्रेजेंट नहीं है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। इट इज नॉट अप्रोप्रिएट एंड ही आर गिल्टी। लेकिन अगर कुछ अच्छा होता है या पॉजिटिव है, या केस में यू, ही एंड आई आर गोइंग फॉर अ पिकनिक, उस केस में ये सीक्वेंस रहेगा, यू, ही एंड आई। ओके, द बैग इज वेरी हैवी फॉर यू टू लिफ्ट इट। The bag is too heavy for you to lift it. वेरी गुड, टू TOO, गुड। अब आपको इसमें क्या करना है, हाउ मेनी ऑफ यू आर प्रेजेंट देयर? ओनली 26, बाकी सब छोड़ के भाग गए हैं कि कुछ नहीं करना है इसमें में, ठीक है? ठीक है, अब आपको इन सेंटेंसेस में से कुछ नाउन्स लेने हैं। नाउन्स आर हिडन इन Ma'am, दीज please mark सेंटेंसेस। my attendance. Chaitanya Arora, ma'am. चैतन्य, बेटा आपकी उसमें नहीं है ये अटेंडेंस अभी? हम पता नहीं, मैं मुझे भी मेरा अभी डिस्कनेक्ट हो गया था मैम। कोई नहीं, मैं अटेंडेंस अभी लगाती हूँ, उसके बाद देख लेती हूँ मैं। जल्दी से आप इनमें से पहले नाउन्स फाइंड आउट कीजिए। यू हैव टू फाइंड आउट द नाउन्स। नाउन्स आर हिडन। इनमें नाउन्स भी हो सकते हैं, एडजेक्टिव भी हो सकता है। मैम रिपीट करना, आपकी आवाज नहीं आ रही थी। You have to find out the nouns or adjectives hidden in these sentences. कुछ तो विजिबल हैं जो कि जिनसे सेंटेंसेस बने हैं, लेकिन कुछ इसमें हिडन भी हैं। आपको जो हिडन नाउन्स और एडजेक्टिव्स हैं वो निकालने हैं। मैम ब्रेव आ जाएगा एडजेक्टिव में? नहीं, वो तो विजिबल है, हिडन का है वो, दैट इज नॉट हिडन। बहुत देर हो गई आपको पढ़ते पढ़ते, इसलिए एक छोटा सा ये गेम है आपके लिए, एक्सरसाइज नहीं है। माइंड गेम्स, थोड़ा सा रिलैक्स। यस Ma'am, यस, ma'am, in first sentence, principal is a noun and brave is adjective. नहीं नहीं, आपको वो नहीं करना है बेटा, हिडन ढूंढना है इसमें, कुछ नहीं बताना है। एक बार आप एक एग्जांपल दे दो, फिर नेक्स्ट हम ट्राई कर लेते हैं। देती हूँ, देयर इज ओनली वन प्रिंसिपल ऑफ द ब्रेव टू brave, do or die, door, hidden noun, door। अच्छा, आ गया, समझ आ गया। आ गया समझ में? गुड। चलिए सेकंड सेंटेंस में देखिए। मैम नॉट और एबल से टेबल नहीं बन जाएगा? मैम चेयर। चेयर, वेरी गुड। मैम सेम में टेबल भी बन जाएगा, टेबल। टेबल भी बनेगा, वेरी वेरी गुड, गुड। थर्ड सेंटेंस। मैम बैंड। वेरी गुड, यस, बेंड। नेक्स्ट। मैम बैड। ग्रीन। ग्रीन, वेरी गुड, ग्रीन।
Yes. Tall. 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 Good. Tape. Tape. Very good. Okay. In this sentence, Mango. Mango. this one, Kiwi. good. किसने आंसर दिया है ये? मैम आदित्य. आदित्य. Very good, Aditya. All. No. Wish. कैसे बनेगा? Wish? Wish तो verb. हाँ, Abstract noun भी आप इसको noun. कह सकते हैं. हाँ, wish हो सकता है wish, ठीक है. एक और है यहाँ पर, name of a fruit. एक मैम FIG. नेम ऑफ अ फ्रूट, जल्दी से, क्योंकि ऑलरेडी आपकी क्लास का टाइम ऊपर हो चुका है, दूसरी क्लास आपकी शुरू हो गई होगी. Fig. FIG. जल्दी. फिग. वेरी गुड. फिग. ओके, रेस्ट ऑफ इट विल बी Fin. टेकन इन नेक्स्ट क्लास. फिग, FIG. गुड. Okay. Let me mark your attendance. मैम वो क्लासरूम का लिंक सेंड कर देना एक बार, मेरे मेल पे आया ओके नहीं. बेटा. ओके. Just a minute. It will take only 2 minutes. I must mark it. Yes, Aditya. Yes मैम present. Ashima. Abhinav. Present मैम. Aditya Rawat. Aditya Rawat. Akanksha. Anurag. Anushka. Present, ma'am. I'm Anurag. Anurag present. Manushka present. Arushi. Arushi. Aryan. Astha. Astha. Ayush. Okay बेटा. Ayush. Chaitanya. Chaitanya present, ma'am. Chaitanya present. Chanchal. Dhupam. Dhriti. God Sundar. Harsh Gupta. I'm Divya. Divya present. Harsh. Harshit. मैम हर्षद गुप्ता प्रेजेंट. मैम हर्ष गुप्ता present. Okay. Harshit Kumar. Present, ma'am. Jay. Kabir. Present, ma'am. Karthik. Karthik Negi. Kulbhushan. Kuldeep. Manish. Yes ma'am. Manya. Kuldeep present ma'am. Okay बेटा. Manya. Mudit. Muskan. Present ma'am. I'm Muskan present. Mudit, are you present? Namit. Niharika. Niharika present ma'am. मैम मुदत भी प्रेजेंट है. Okay. Nikunj. Nitin. Pankaj. Prachi. Priyansh.
Present, ma'am. Priyanshu, Rajiv, Rishi, Present, ma'am. Sahil, Rajiv, Rishi, Now Rishi present. Sahil, Sana, Shiv, Yes, ma'am. Present. Shivam, Present, ma'am. Shoaib, Shivam present. Siddhan. Okay, beta. Siddhan, Sneha, Tarun, Jishan. Ma'am, I wanted to confirm, did you mark my attendance, Divya? Yes, beta. Okay, ma'am, thank you. Okay. Thank you, all of you. Please take a good care of yourself and stay safe.